Hello student, welcome to the Brilliance Growth Academy. Today we are going to start our next chapter, that is the organization, and this chapter will definitely help you to understand second function of management, that is the organizations. We will deep dive in the organization concept and its other aspects on the different period of time. So first of all, we are starting with the concept of organizing. In management, planning specifies where an enterprise wants to go, but organizing determines how it will actually get there. If planning represents the blueprint of a building, organization is a structural scaffoldings, raw material allocation, distribution of labors that turns the abstract blueprint into a physical realities. It means that once you start doing a particular plan, once you start doing what is to be done, how it is to be done, and whom it is to be done, in that case, now you are focusing on how it will be done, right? How you have to answer the how it will be done. So how it will be actually get there or how it will actually done, it based on all the things that the in terms of resources or in terms of people you have in your organizations. इसका मतलब है कि अगर आपको आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि भाई हम ये काम करेंगे तो उसको कैसे करना है, यही ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपका पास रॉ मटेरियल है, आपके पास लेबर है, आपके पास मनी है, और उसको पूरा करने के लिए आप इन सब चीज़ों को अरेंज करते हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। इसलिए इस चैप्टर को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, राइट? So without organizing, even the most brilliant strategies that is framed in planning remains a collection of good intention. Organizing act as a execution engine of the management, right? कि बिना अगर ऑर्गेनाइजिंग की अगर अपन बात करें तो कोई भी ब्लूप्रिंट यहाँ पर काम नहीं करेगा, भले ही आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, इसका कोई भी फायदा आपको देखने को नहीं मिलता। सो क्या करें इसके लिए? सो इट विल टेल यू इट इज अ क्रिटिकल ऑपरेशन फंक्शन दैट हार्मोनाइज द ह्यूमन इंटेंट विद फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर हमें सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करना होता है कि हम कौन सा काम कैसे कर रहे हैं, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, कैसे हम उन तक अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग विल कंसिडर अबाउट harmonizing the human intention or human intent with the physical और financial assets, because organizations के पास इस वक्त intellectual power भी है और physical power भी है, financial assets भी हैं। तो इन सबको वो क्या करती है, जॉइंट करती है। कौन जॉइंट करती है? मिलाती है, ताकि हम उस ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ें जो हमने पहले प्लानिंग में डिजाइन कर रखा है। सो प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज लाइक ए ब्लूप्रिंट, राइट? And organizing is what? Organizing is a bridge that help you to execute your planning, and it will help you to get back to your result. So this way organizing will help you. Now what is the meaning of the organizing? Organizing is a core management function. You can say it's the second management function of organization management, and it secure arranges and resources. It secure and arranges the resources. It define clear working relationship. It coordinate human and material effort. तो सबसे इम्पोर्टेंट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के याद रखें कि सेकंड मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। सेकंड पॉइंट, ये रिसोर्स के लिए बना है, रिसोर्स सारे सिक्योर करना, रिसोर्स सारे काम में लेना, इसी लेवल पर ये पॉसिबल हो सकता है। फिर इट डिफाइन द क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, जितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होते हैं, ऑल दीज आर designed here, and all these are finalized here, and it is the main base of base of highlighting the reporting relationship between superior and the subordinate. Here coordination between the human and material effort would be analyzed, would be materialized, right? So you have to think according to that that point of view in terms of organizations.
या ऑर्गेनाइजिंग. What is the definition? One of the important definitions shared by the Lewis Allen. Organizing is the process of identifying and grouping work, defining responsibility, and establishing the authority relationship. So this way, he is trying to identify the what are the works to be done and how it is to be done and what is the reporting relationship, and this all are set on this level, that is the organizing. One of the question I have highlighted for you. So once you read it out, you can answer this question immediately. So it will help you to understand the concept better, and definitely it will help you to design your MCQs in that sense. Or you can answer your question by understanding the process of by understanding the concept of organizing. Next is steps in the process of organizing. Organizing follow the four systematic chronological steps, right? Because as we have studied about the planning process, in the same way we have a process of organizing. So what are the steps? There are four steps. First, you need to highlight, you need to remember first four steps in a chronological order, because most of the time when a question appears in front of you during the examinations, they basically related with the steps. They basically related with the step, and all these steps are in a chronological order, and all the function mentioned in each of the steps should be in the same way as it has its chronological step. So first step is identifying and the division of work. काम को डिवाइड करना, काम को कैसे डिवाइड करना है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इन सब का जो डिवाइडेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना होता है. सो डिवाइड द टोटल वर्क इनटू मैनेजेबल टास्क, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एफर्ट्स और रिड्यूस द बर्डन ऑन इंडिविजुअल वर्कर. तो सबसे पहले काम डिवाइड करें, फिर ये भी देखें कि डुप्लीकेशन तो नहीं है कामों में कि भाई एक काम को दो लोग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सेम काम को दो जने करेंगे तो डुप्लीकेशन एफर्ट होगा, रिसोर्स ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, कोई मतलब नहीं होता. थर्ड वन, रिड्यूस द बर्डन ऑन इंडिविजुअल वर्कर्स. इंडिविजुअल वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें काम को या उसके वर्क को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सेकंड है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स यू हैव टू ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज अंडर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग के जितने काम होंगे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स के जितने काम होंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, एचआर जिसमें लोगों को हायर करना, स्टाफिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, वो डिपार्टमेंट करेगा. सो वी नीड टू ग्रुप द सिमिलर एक्टिविटीज अंडर वन हेड दैट वी कॉल्ड डिपार्टमेंट. So it will create a specialized operational unit, like in terms of sales and sales department, marketing department, then your human resource department, purchase department, production department. So similar activities are grouped under a one head and it is called department. Third point, base unit on product and the territory. Whatever product or whatever production you will done, it will based on the territory and it will based on the product, right? So you cannot say that all the works would be done by all the department. No, base unit on product और टेरिटरी. जितनी भी यूनिट आपका काम होगा या प्रोडक्ट के रिलेटेड काम होगा या टेरिटरी के रिलेटेड काम होगा वो डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ही होता है. नाउ थर्ड पॉइंट या थर्ड स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, राइट? फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाई एंड डिवीजन योर वर्क. First, you have identified and divided your work. Second, you have departmentalized the group activities which are in a similar interest. And third, assign the duties, right? So allocate a specific job to employees. जो जिस काम के लिए available है उसको वो चीज़ सौंपी जाए. Match the task with the personal skills. जो जिस काम के लिए माहिर है, जिसके पास जिस तरह की skills हैं, उसको वही काम सौंपा जाए, उसी तरह का काम उसके हाथ में होना चाहिए. And then designate clear departmental heads. और जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो, डेजिग्नेटेड हो कि भाई ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसके आगे आप मार्केट डिपार्टमेंट का ही बोर्ड या इस तरह की कोई पिक्चर आप लगा सकते हैं, या कैबिन होंगे तो वहाँ पर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स का एक लेबल लगा हुआ होगा.
तो उस केस में आपको वो चीज़ वहाँ पर हाईलाइट करनी है। तो मार्केटिंग की जगह मार्केटिंग, एचआर के लिए एचआर, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, and then any other department, its name should be highlighted on the respective cabin so that their duties are assigned or they have a particular duty or responsibility in their department. Fourth, you need to highlight establish authority or reporting relationship, right? कि भाई एक डिपार्टमेंट सपोज मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के अंदर हेड कौन है, हेड के नीचे कितने जने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो एक बंद अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो हर एक बंदा जिस जो उसको काम सौंपा गया है वो अपने हेड को इन्फॉर्म करेगा। दूसरा बंदा भी अपने ही हेड को इन्फॉर्म करेगा, तीसरा बंदा भी अपने हेड को इन्फॉर्म करेगा। सो ऑल 4 पर्सन्स आर लायबल or accountable for their work, and you have to they have to report their task to their senior or the supervisor जो कि उस डिपार्टमेंट का हेड कहलाता है। तो ये आपके पास 4 सीक्वेंस होते हैं जिसमें आपको अपने क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो लास्ट वन जो था आपका डिफाइन हु गिव ऑर्डर, clarify who report to whom, and create a clear hierarchical structures कि भाई कौन ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और हिरार्चिकल लेवल क्या रहेगा, सिर्फ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या रहेगी, मतलब सुपरवाइजर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। दिस इज कॉल्ड हिरार्चिकल लेवल, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन स्टेप इन सच ए 4 स्टेप. Next, we are moving on. Here I have mentioned a questions that will help you to what is the exact sequence, because it will help you to memorize the sequence of the organizing steps. So first is a division of work, second the departmentalization, third one is assignment duties, and fourth one is the reporting relationship. So B answer is correct here. So in this way, you can judge your understanding about the things. So it will help you understand the particular point in a such a manner that you would not forget about the point, right? Now we are moving on the next topic, that is the importance of organizing. Organization provides critical benefit for enterprises survival and growth, right? Because once you organize your resources, once you organize your human resource, whether it's a material, physical assets, whatever it is, when you are optimally organizing these 3 things in terms of resources, in terms of human being or any other assets, so it will help you or help the organization to survive and grow in the near future or for a long period of time. So what are the benefits that you would be have through the organizing? The first is benefit of specializations, right? बेनिफिट स्पेशलाइज इन सेंस कि भाई एक काम को जो उसमें स्पेशलाइज बंदा है वही करेगा। यानी कि सपोज आप गाड़ी अगर खराब होगी तो आप उसको मैकेनिक के लिए लेके जाएंगे, डॉक्टर के लिए लेके नहीं जाएंगे। सो इस केस के अंदर रिपीटेटिव टास्क परफॉर्मेंस ब्रिंग इफिशिएंसी, यानी एक बंदा जिस काम में माहिर है उसको आप वही काम सौंपोगे, ठीक है? कोई अगर टायर चेंज कर रहा है कार का, या कार के अंदर की वायरिंग कर रहा है तो उसको वही काम सौंपा जाएगा। टायर चेंज करने वाले को या टायर प्लांट करने वाले को वही काम सौंपा जाएगा। उसको वायरिंग वायरा जो काम है वो हम हैंडओवर नहीं कर सकते। तो जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको हम वही काम हैंडओवर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूनिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वी कैन डिज़ाइन। सेकंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ओके, सो इट डिफाइन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई किस वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, कि मेरे को क्या काम करना है और मुझे किसको रिपोर्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनलाइज होगी, अथॉरिटी भी आपके पास होती है और आप उस काम के लिए अकाउंटेबल भी होते हो। तो क्लियरिटी रहती है कि भाई मेरा किससे क्या रिलेशनशिप है, किस चीज़ के कंसर्न में मुझे किससे बात करनी है, या किस चीज़ के कंसर्न में मुझे किस अदर पर्सन को कांटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि आपको अगर मार्केटिंग के अंदर काम है तो आप तुरंत जाके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से किसी बंदे से बात कर रहे हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई काम होता है, इफ़ यू हैव अ वर्क रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन,
then you have to follow the order, right? You will first of all approach to your supervisor. Your supervisor approach to the supervisor of the, say, production department or say any other department. Then that supervisor will contact to his subordinate, and then will take the some of the information that your department required, and it will give back to the head of department of your, say, marketing, and then it will come to the subordinate of the marketing department. So यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशंस का जो लाइन है वो फिक्स है, आप इसको ड्रॉप करके या स्किप करके अदर डिपार्टमेंट आप सीधे बात नहीं कर सकते, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग ए फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, तो देन यू हैव टू गो फॉर्मली. और इफ़ यू आर वर्किंग इन इनफॉर्मल environment, then you can directly contact with that person, right? So in this way, clarity in a working relationship will work. Third one is optimal utilization of resources. Job clarity avoid duplication and the wastage. It will help you to analyze this particular point कि optimal utilization resources कब possible हो सकता है, जब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगी, ताकि डुप्लीकेशन से आप बचो, वेस्टेज ऑफ वर्क से आप बचो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आप बचो, ताकि आपके रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मटेरियल और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ये सब सेव होने चाहिए. तभी आपका जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज होंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी, और आप कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. फोर्थ वन इज इट्स अडेप्शन टू द चेंजेस. फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चर अकोमोडेट मार्केट इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशंस. अडेप्टेशन चेंज इन सेंस कि भाई अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो आप तुरंत उसको अडेप्टेबल हो सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप काम कर सकते हो. तो इन दिस वे इट विल हेल्प यू एनालाइज कि भाई हमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अकोमोडेट करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर कोई चेंजेस अगर होते हैं या मार्केट एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम आसानी से, या डिपार्टमेंट उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? सो इन दिस वे योर ऑर्गेनाइजिंग विल वर्क फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा बाहर निकल कर हम अपने घर की अगर देखें, तो अगर कोई अलग सी चीज़ या हमारे घर में अलग सा इंसिडेंट होता है तो उसको हम अडेप्ट करते हैं, राइट? जैसे सपोज हमें कहीं जाना है या घूमने जाना है, तो एक नया सिनेरियो सामने आया, तो हमें सबसे पहले उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना होता है. फिर हम उसके प्लानिंग के कंसर्न में हम रिसोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई हमें कहाँ क्या कैसे ऑर्गेनाइज है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्या हमें बैग या हमें क्लॉथ वगैरह, हमारी मेडिसिन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हमें जो अपने रिसोर्स हमें चाहिए होंगे वो सब हमें काम में लेने पड़ेंगे. तो जैसा इन्वायरमेंट में चेंज आया उस अकॉर्डिंग हम वैसा ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. तो इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर या कोई बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हम उस इन्वायरमेंट में काम कर सकें. अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो बिखर जाएंगे, राइट? We will fall apart. We cannot sustain in that particular environment, because without the business environment you cannot work, because you have to work in a society and for the society, right? So you need to adapt to the change in a very effective manner. Next is your effective administrations. Effective administrations leads to clear job description and eliminate the performance ambiguities. Effective administrations, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आपकी जॉब के बारे में पूरा पता होना चाहिए. सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ये पता है कि भाई मेरा काम है सेल्स करना, मेरा काम है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, मेरा काम है लोगों को प्रोडक्ट बेचना, मेरा काम है लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना. तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है और एचआर के काम आपसे करवाए जा रहे हैं, नहीं. जब तक आपको बताए गए काम आपके हिसाब से नहीं होंगे, तब तक आपकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी. तो इसलिए यू शुड हैव अ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट विल एलिमिनेट परफॉर्मेंस एम्बिग्यूटीज. कि परफॉर्मेंस एम्बिग्यूटी मतलब भाई मेरे को रखा तो सेल्स के लिए, बट मैं कर रहा हूँ एचआर का काम, कैसे पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकता. तो यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ाया जाता है, गड़बड़ हो जाता है. तो इसलिए यू हैव टू वर्क इन द प्योर इंटरेस्ट of your own job description,
right? You have to know that what are my job responsibility, what is my job descriptions, so that I will perform in that manner, and it will show my performance according to my job description. So in that case you will have effective administration. Next one is development of a personnel. That is, the delegation allows managers to innovate and grow. डेलीगेशन अलाउज मैनेजर टू इनोवेट एंड ग्रो, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ पर्सन मतलब लोगों का डेवलपमेंट कब होगा कि जब हम उनको डेलीगेट कर, राइट? सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम बंदा कर रहा है, उसको हमने बोला कि भाई आपको सेल का काम करना है, तो उसको हमने सेल का काम पूरा समझा दिया, सेल का काम कैसे है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, आपको ब्रोशर्स से कैसे बताना है, क्लाइंट को कस्टमर से कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीज़ें हमने बता दी। तो जब हम उनको काम देते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो डेलीगेशन से क्या होगा, मैनेजर्स इनोवेट होता है, ग्रो होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो मैनेजर बनता है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर, इस तरह से आपका जो हिरार्की है वो बढ़ती जाती है। तो जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे तो मैनेजर इनोवेट नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए हमारे को अगर किसी पर्सनल मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले, उनको अगर डेवलप करना चाहते हो तो आपको उनको डेलीगेट करना होगा, काम डेलीगेट करते हैं। तो काम डेलीगेट करने से, इफ यू डेलीगेट अ सर्टेन वर्क टू अ सर्टेन पर्सन, he will try to innovate and grow. He will try to find out the how this function, how this work will be done, and how this would be done in a much effective manner or efficiently. So in that way your communication, your personnel will develop, because in that situation you are trying to highlight the positions of the people, you are highlight the development phase of the your manager, so it will help you to grow and innovate. Next one is expansion and growth. Expansion growth leads to, or it enables diversification, new product line. देखो, expansion growth is connected with the business expansion, business growth, right? So अगर आपके पास स्टार्टिंग में आप एक प्रोडक्ट से काम कर रहे थे, नाउ बिजनेस अच्छा चल रहा है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू एक्सपेंशन प्लान, now the organization is trying to expansion plan, it wants to grow, so it will diversify new product line. Suppose आप तक आप कार की टायर या बैटरीज बनाते थे, अब आपने कार की सीट भी बनाना शुरू कर दिया, अब आपने कार के जो वॉल्यूम है, सॉरी म्यूज़िक है, वो बनाना शुरू कर दिया, आपने कार के जो अदर पार्ट्स हैं वो भी और बनाना शुरू कर दिया, राइट? तो आपने अपने काम को डाइवर्सिफाई करा। तो वेयर यू अर्लियर वर कन्फाइंड only to designing and development of the tire and its other accessories, now you started manufacturing its seat, its other parts as well. So you are diversifying your product and your service line. So it will help you to organize in a such a manner. You would expand your business, you will grow your business, and it will help you to continue in that manner. So it's all about the importance of organizing, right? So here I have mentioned one of the questions that will help you to answer about how the organization lead to structure specializations, because of now you have to answer the same. In the next video we will try to identify next topic, that is the organization structure, and we'll continue with the same. Till then you can study and you can read about all the chapters concerned with these topics only, right? I will share other part of this particular chapter in the next video. Till then you can study and you can answer the questions, and apart from this, if you have any comment, if you have any question, then you can uh, put in the comment box and I will try to answer your question. Thank you.